Okay, welcome back, everyone. ठीक है, सबका स्वागत है। So we are in lesson number 4. और अभी हम अध्याय 4 में हैं। We're just going to quickly go through all the signs that are telling us that we are really at the end of the end times. और हम उस चिन्ह में हैं जो अभी कहते हैं कि हम लोग अभी अंत समय में है, उसका चिन्ह है। So the first one is, this first important sign is that Israel became a nation. तो सबसे पहला जो बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है कि इज़राइल एक देश बन गया। And the Lord Jesus said that, one generation will see all of these things to happen. One generation. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक पीढ़ी ऐसी होगी जो ये सब बातों को होते हुए देखेगी। So a generation could be anywhere from, 80 years and 120 years, I don't know. तो जो पीढ़ी हो सकती है कि 80 साल से 120 साल तक, मुझे नहीं मालूम इसका। But a generation will see everything happen. तो One वह generation. एक पीढ़ी ये सब कुछ होते हुए देखेगी। Okay? So we have to pay attention to the fact that Israel became a nation. तो हम इस बात को अपना ध्यान देना पड़ेगा कि इज़राइल एक देश बन गया। A second sign is that Jerusalem has become a center of conflict. और दूसरा बात यह है कि यरूशलेम एक मतभेद का केंद्र बन गया। Right? So that is fulfilling the prophecy there in Zechariah 12, 1 to 3. और जकरिया के 12 के 1 से 3 में वह भविष्यवाणी पूरी होती है। Even though Israel is such a small nation, जैसे कि इज़राइल भी एक बहुत छोटा देश है, it's like the world's attention is on it. लेकिन संसार का पूरा ध्यान ही उसके ऊपर है। It's such a small country, बहुत छोटा देश है, but today it's always in the news. लेकिन हमेशा वह समाचार में रहता है। And nations are, discussing, arguing what to do. और फिर जो सारे देश होते हैं, राष्ट्र होते हैं, वे बातचीत करते हैं कि क्या करना है। Jerusalem has become a place of conflict because of the temple. और यरूशलेम उस जो मतभेद है उसका वह एक केंद्र बन गया। The third sign is that the Temple Mount is ready to be rebuilt. और हम देखते हैं कि वह जो मंदिर का जो ये है वह दोबारा बनने के लिए, मंदिर का जो पर्वत है उसका पुनः निर्माण के लिए तैयार है वो। So again, we saw that as part of the 7 years of tribulation, there has to be there has to be a temple where the sacrifices are happening and then it is stopped in the middle. हम देखते हैं कि सातवें वर्ष के जो महाक्लेश के दौरान एक मंदिर का होना जरूरी है जहां पर आराधना होती है, बलिदान चढ़ाए जाते हैं, लेकिन अचानक से वो बंद हो जाता है। Right? So the Orthodox Jews are ready to rebuild that temple. और जो अधिकारी हैं यहूदियों के, वे तैयार हैं उस मंदिर को बनाने के लिए। The fourth one, और जो चौथा है, is that there has to be 10 leaders who will come out of the former Roman Empire. और देश 10 अगुवे बनेंगे जो पूर्वी रोमियो साम्राज्य में से आएंगे। So we see that now across Europe. There is the European Union, lots of small countries. हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ के छोटे छोटे देश होते हैं। And there are leaders who are coming up from among those countries. और कुछ अगुवे आते हैं उन देशों से। And so, for 10 of them to come into the forefront, it's very simple. It's pretty easy. और उनमें से 10 का आगे आना बहुत आसान है, बहुत सरल है। Okay? So it's almost like the stage has been set for these 10 leaders to come forward. तो इस प्रकार है दान पड़ता है कि जैसे जो पड़ाव है उनके लिए स्थापित कर दिया है इन 10 अगुवों के लिए कि वे आगे आए। Because it is these 10 leaders who will support the Antichrist, bring him, into prominence. और यह जो 10 अगुवे होंगे वह उस कृष्ण विरोधी का साथ देंगे, उसको सत्ता में आने में मदद करेंगे। And so that's also possible.
तो ये भी संभव है। Number 5, और पांचवा, um, the possibility of a global currency system. और जैसे एक वैश्विक मुद्रा का प्रणाली होगा, Like how we were talking today, it's possible तो आज यह संभव है that we can have a financial system that covers the whole world. तो ऐसा एक आर्थिक प्रणाली हो सकता है जो सारे संसार को घेरे हुए है। Example, उदाहरण के रूप में I'm just giving an example. मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। Like you have a Visa card आपके पास एक वीजा कार्ड होता है, or a MasterCard. एक मास्टर कार्ड होता है, That's all over the world. तो यह पूरे संसार में है। So that form of payment तो इस is accepted just almost everywhere. और इस प्रकार का यह भुगतान का तरीका है जो हर एक जगह इसको स्वीकार किया जाता है। So we're very close to seeing this happen. और हम बहुत नजदीक हैं इसको देखने के लिए। Number 6 would be when we look at countries like Russia, China, Iran, and Turkey. और जो छठी बात है वह है कि जब हम रूस, चीन, ईरान और तुर्किस्तान को देखते हैं, Now, China is not mentioned by name in the Bible, तो बाइबल में चीन एक नाम के रूप में उसको बताया गया बाइबल में। but we saw yesterday the army of 200 million people. हम लोगों ने देखा कि 20 करोड़ सेना की संख्या। So that's why we think like, oh, only a nation like China could have that kind of an army. तो हम लोगों ने देख के यह कहा कि सिर्फ चीन देश है जिसमें इतने बड़े संख्या की सेना हो सकती है। But Russia, Iran, Turkey, these countries are given by name in Ezekiel chapter 38. और यहेजकेल के 38 अध्याय में इन देशों के नाम लेकर बताया गया है कि रूस, ईरान और तुर्की। In Ezekiel 38, it talks about the king from the north. और इज़ेकियल 38 में उत्तर का एक राजा के बारे में बात करता है। And some of the tribes that are currently today in Russia are named. और जो कुछ जनजाति हैं जो अभी रूस में है उनका भी नाम दिया गया है। And then it talks about Togorma, which is Turkey. और जो गोरमा के नाम को बताता है जिसका जो तुर्की कहलाता है, तुर्किस्तान कहलाता है। And it refers and mentions by name Persia, which is Iran, modern day Iran. और फारस का नाम है जो आधुनिक दिन में ईरान कहलाता है। And it says all these nations will come against Israel. और कहता है कि ये सारे देश इजराइल के विरोध में आ जाएंगे। Ezekiel wrote it in Ezekiel chapter 38. और इज़ेकियल ने 38वें अध्याय में इसको लिखा था। So think about it. Even before the time of Christ, he wrote. तो आप इसके बारे में सोचिए कि मसीह के समय के पहले, बहुत पहले इसने इस बातों को लिख दिया था। And that's the build up to the battle of Armageddon. और वह उस बात को पुनर्स्थापित करती है कि हर्मगिदोन की लड़ाई So होगी। today when we look at the world news, तो जब हम इस वैश्विक समाचार को देखते हैं, we can see so clearly हम साफ रीति से देख पाते हैं how Russia and China are aligning with each other. किस प्रकार रूस और चीन एक साथ मिलकर आ रहे हैं। How Russia and China also getting influence over Iran and Turkey. और किस प्रकार रूस और चीन दोनों मिलकर वह प्रभावित कर रहे हैं ईरान और तुर्किस्तान को। They all have an alliance. तो उनका एक सबका एक गठन हो गया है। We can see it. हम उसको देख पाते हैं, It's happening. ये हो रहा है। Ezekiel wrote about it in his time. और इज़ेकियल ने इसको लिखा था अपने समय में। And they can all move together against Israel. और फिर वे एकदम सब एक साथ हो सकते हैं, आ सकते हैं इजराइल के विरोध में। Number 7, 7वां बात, we also see that the peace talks that and the plan is to divide the land. देखिए जो योजना है वह है भूमि को विभाजित करना, और हम उस शांति वार्ता के बारे में देखते हैं। So every peace proposal that has been put forward for the Middle East, और जो प्रत्येक शांति लाने की जो प्रयास है उनके सामने रखी गई हैं, is always saying, Israel, you give up some of your land, let the Palestinians stay.
divide the land. तो ऐसी बात रखी जाती है कि इजराइल तुम अपने कुछ भाग को, भूमि के भाग को छोड़ दो, फिलिस्तीन भी अपने कुछ भूमि के भाग को छोड़ दे। But Israel says, no, we will not. तो इजराइल कहता है कि नहीं, हम नहीं करेंगे, It's our land. वह हमारा देश है, We हमारी want it भूमि है back. और हम उसको चाहते हैं वापस। And so if you see what Israel is doing, they are actually building more and more settlements uh, uh, on the east side along the river Jordan. और हम देखते हैं कि किस प्रकार वह बातों को, युक्तियों को कर रहा है उत्तरी भाग में, जो यर्दन नदी के किनारे की भाग है, So वहां से, that area is called the West Bank. और जो पश्चिमी किनारा कहलाता है। And they are just continuing to build their settlements. और फिर वे अब लगातार अपने जो पात्र है उसको वो रखते हैं। Now in Gaza, the fighting has been going on. और जिस समय के लिए यहाँ पर जो ये लड़ाई हो रही है, We don't know what the result will be. हम ये नहीं जानते कि कैसे इसका परिणाम क्या होगा। But Israel wants to have control. लेकिन इजराइल नियंत्रण रखना चाहता है। They say we want to control it for the security of our own country. वो कहता है कि अपने देश की सुरक्षा के लिए इस पर हम नियंत्रण करना चाहते हैं। So how that's going to be solved, I don't know. We don't know. तो हम नहीं जानते कैसे हुआ उसका समाधान होगा, उस समस्या का हम नहीं जानते। So what the Bible says is the nations will come to divide the land. तो बाइबल क्या बताती है कि देश आएंगे इस भूमि का विभाजन करने के लिए। And interestingly, every peace proposal that has come either from America or from the European Union or from other countries, they're all saying, divide the land, divide the land, divide the land. तो जितने प्रकार के शांति वार्ता के जो ये आएंगे, वो सब आएंगे अमेरिका से या अलग अलग देशों से, वो कहेंगे कि भूमि का विभाजित करो, भूमि का विभाजित करो। Right? So that's something that we have to keep looking at. तो वह ऐसी बात है जिसको हमको लगातार देखना पड़ेगा। Number 8, 8वें वचन, 8वें बात, the church coming to maturity. और फिर जो कलीसिया अपनी परिपक्वता में आएगी। This is also an important sign. और यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है। Because Ephesians 5:27 says that Jesus is coming back for a glorious church. क्योंकि इफिसियों के 5:27 कहता है कि यीशु 5:27 कहता है कि यीशु वापस आ रहा है उस तेजस्वी कलीसिया के लिए। That means the church is coming, to a place of glory. कि जो कलीसिया आ रही है वह एक तेजस्वी जगह में आ रही है। And if you see what has happened in the last 500 years, और हम जब देखते हैं कि पिछले 500 सालों में क्या हुआ, 500 years ago, not everybody had a Bible. तो 500 साल पहले सबके पास एक बाइबल नहीं था। The Bible was available only to a few people और बाइबल सिर्फ कुछ लोगों को लिए उपलब्ध कराया गया था, in a few languages. कुछ भाषाओं में। Today, आज Bible is available in almost every language, more than 200 languages. और बाइबल उपलब्ध है 200 से लगभग 200 भाषा में, जो सब भाषा है उसमें। In just 500 years, सिर्फ 500 साल ही हुए हैं the church has been brought into a place of great glory. और जो कलीसिया को लाया गया है उस तेजस्वी स्थान में। I'm not saying we are perfect, हम ये नहीं कहते हैं कि हम लोग बहुत सिद्ध हैं, but we are in such a place where people all across the nations are worshiping Jesus. और हम इस जगह पे हैं जहाँ पर राष्ट्रों के लोग आकर एक साथ यीशु की आराधना कर रहे हैं। So Jesus is coming back to a glorious church. और प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं उस तेजस्वी कलीसिया के लिए। Number 9, नवा भाग, this gospel will go to the nations, यह सुसमाचार राष्ट्रों में जाएगा। and we are close to the finish line. और हम लोग जो अंतिम रेखा है उसके एकदम करीब है। The gospel has gone to every nation. और जो सुसमाचार है वह प्रत्येक राष्ट्रों में चला गया है। What's left is trying to reach every tribe. और जो बचा हुआ है कि जितने भी जनजाति हैं उनमें यह बांटी जाए, पहुंचाई जाए। So that's the final step. और यह एक अंतिम चरण है। Every tribe. हर एक जनजाति, And once the gospel reaches every tribe, और हर एक प्रजाति को जब यह सुसमाचार चला जाता है Jesus said, then the end will come. तो यहाँ पे यीशु कहते हैं कि अंत आ जाएगा। So we're very close. हम लोग बहुत नजदीक हैं।
Number 10, और दसवां हाँ। भाग, the rest of the signs you're familiar with. There is increased persecution of the church, हम देखेंगे कि जिसको आप पहले से ही जानते हैं कि बहुत सारे सताव होंगे कलीसिया में, and this is happening all over the world, और ये होता है हर पूरे संसार में, not just in India, भारत में ही नहीं, but everywhere. हर जगह There's increased persecution. जहाँ पे सताव बढ़ाई गई है। Number 11, 11वां, there's a lot of deception and false spirituality that's even believers are being deceived. और ऐसे जैसे धोखाधड़ी या वैश्विक अध्यात्मवाद या झूठी आत्मिकता, जहाँ पर विश्वासी भी इस धोखे में फंस जाते हैं। Paul wrote, 1 Timothy 4, he said 1 and 2, that people depart from the faith. और पहला तो मतलब इसमें 4 के 1 और 2 में पौलुस लिखा भी है कि लोग जो है अपने विश्वास से भटक जाएंगे, And they'll give heed to deceiving spirits and doctrines of demons. और वो अपने आप को दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर और भरमाने वाली आत्माओं को हाथों में सौंप देंगे। Number 12, 12 भाग, again, this is a very interesting prophecy. 12वां जो है वह बहुत ही जरूरी एक भविष्यवाणी है। And the angel Gabriel, he told Daniel 12 verse 4, और गिब्राइल दूत ने दानियल को 12 के 4 में कहा था that in the time of the end, many will travel, many will run to and fro, and knowledge will increase. और लोग क्या करेंगे कि बहुत जो है वो आगे यात्रा करेंगे, आगे पीछे यात्रा करेंगे और ज्ञान बढ़ेगा। So we're seeing that happen. हम देख रहे हैं उसको होते हुए, People are traveling everywhere. लोग एकदम सब जगह वो यात्रा कर रहे हैं। It's easy. यह बहुत आसान हो गया है And knowledge has increased so much. और ज्ञान इतना बढ़ गया है, There's a lot of information available now. और सारी प्रकार की जानकारी भी उपलब्ध है। All this happened in the last 20 years or so. और यह सब हुआ है पिछले 20 साल के ऐसा, Just suddenly everything has happened. अचानक ये सब हो गया। But the angel told Daniel, Daniel, in the time of the end, knowledge will increase. People will run to and fro. और डैनियल ने कहा कि उस अंत के दिनों में लोग में ज्ञान बढ़ेगा और लोग यात्राएं करेंगे। Number 13, 13वां, the political situation will be such that nation will rise against nation, kingdom against kingdom. और जो वैश्विक राजनीतिक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि देश के ऊपर चढ़ाई करेंगे, लोग के ऊपर चढ़ाई करेंगे, And there will be wars and commotions everywhere. और जहाँ पर युद्ध और लड़ाइयाँ होंगी हर जगह, And we are seeing that happen. और उसको भी हम आते हुए देख रहे हैं। 14, 14वां, there'll be people who will, there will be a lot of hate and terror, and people will be full of fear. They'll be afraid. और लोग बहुत डर में रहेंगे, सब लोग नफरत में रहेंगे और आतंक में रहेंगे, मतलब लोग बहुत निराश रहेंगे, They won't be living in peace. वे शांति में नहीं जिएंगे। They will, nations will be in distress and perplexed. और जो देश होंगे वह पूरे घबराहट में रहेंगे, वे पूरे निराशा में रहेंगे। 15 and 16. 15 और 16, There will be famines, pestilences, earthquakes, signs from heaven. और अकाल, पीड़ाएं होंगे और भूकंप होंगे, ये सारे रोग होंगे, ये सब जो है चिन्ह होंगे स्वर्ग से। All these things, Jesus said, और ये सारी बातें यीशु ने कही, are signs. ये सारे चिन्ह हैं। And the last one, और अंतिम जो है number 17, उस 17वां जो है, is lawlessness will abound and love of people will just grow cold. और जो लोगों का जो प्रेम है वह ठंडा पड़ जाएगा, और जो अनैतिकता है वो बढ़ जाएगी। Lawlessness, अधर्म या अनैतिकता, the way people live, जिस प्रकार वे जीते हैं, no morality, कोई भी नैतिकता नहीं, no respect for law and other people. और दूसरे लोगों के लिए और नियम के लिए, व्यवस्था के लिए कोई भी प्रकार का उनको पास सम्मान नहीं The रहेगा, very moral condition of man. और बहुत ही अनैतिक दशा में रहेंगे लोग। So all these signs, तो ये सारे चिन्ह हैं, we're seeing it happen.
हम देखते हैं कि ये सब हो रहा है, especially the first few, which are very important in order to see the rest of these prophecies fulfilled. और ये जो पहले जो कुछ हम लोग देखे, ये बहुत जरूरी है कि जो बाकी भविष्यवाणी है इसको पूरे होते हुए। Amen. आमीन। Okay, so we have gone through. I hopefully you've understood the sequence of events. तो जो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो हर एक घटनाओं का जो क्रम है यहाँ पर आपने सीखा है, Right? And how things are going to happen. और कैसे चीजें होने वाली हैं। And yeah, I hope it's clear in your minds. हो सकता है, मैं आशा करता हूं कि ये आपके मनों में अभी साफ हो गया होगा। What I would recommend is just follow the book of Revelation as it is given. मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि जैसा प्रकाशित वाक्य में दिया गया है वैसे ही उसको आप पालन कीजिए। Right? So the book of Revelation is like our outline, जैसे कि प्रकाशित वाक्य जो है हमारा वह बाहरी रेखा है, and then when you read other passages of scripture, you put them in the right place in connection with what's happening in the book of Revelation. और दूसरे वचन को, जो धर्मशास्त्र के वचनों को हम देखते हैं तो उनको हम उठाकर एक सही जगह पे रखते हैं उन बातों को प्रकाशित के पूरा होने के लिए। So okay. ठीक है, So we still have about half an hour. So any questions you won't have. अभी भी हमारे पास आधा घंटा बचा हुआ है, तो अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं ताकि हम उसका उत्तर दे सकें। Of the rapture, why you want to be baptized? Huh? Oh, you're talking about people here on earth. Will they be baptized in water? I think so, because they will read the Bible, and in the Bible they will read to be baptized, so they will follow what the Bible says. जी, तो भाई का प्रश्न था कि कलीसिया को उठाए जाने के बाद जो लोग पृथ्वी पर रहेंगे तो क्या वो बपतिस्मा प्राप्त करेंगे? तो उत्तर है हाँ, क्योंकि वो बाइबल पढ़ेंगे और बाइबल पढ़ते समय उनको फिर पवित्र आत्मा बपतिस्मा के बारे में भी पता चलेगा, तो वो बपतिस्मा ग्रहण करेंगे। Yeah, so Bible will still be here. बाइबल अभी भी यहाँ रहेगा। Yeah, so all these recordings will still be on YouTube. ये सारे रिकॉर्डिंग यूट्यूब में रहेंगे, So somebody might listen. तो हो सकता है कोई सुनेगा, Who knows? कौन जानता है इसे। Yes. Yes. Hmm. There is a great aspect on the God side, on the heaven. साइंस, Hmm. Side, it's a lot of God. तो भाई का प्रश्न है पॉइंट नंबर 16 से कि बहुत बड़ी पीड़ाएं या ये सारी अकाल पड़ेंगे, तो ये संकेत क्या परमेश्वर से आएंगे, उसके बारे में। So those are natural phenomena, great earthquakes, things ये- happening. तो ये प्राकृतिक आपदा होगी, जो बड़ी आपदा होगी जो होती है। So all these signs are just natural phenomena, things happening. तो ये सारी प्राकृतिक घटनाएं होंगी, जो बातें होती हैं वो है। During the tribulation, when judgments are being poured, जब महाक्लेश के दौरान जब न्याय दिया जाता है that's the judgment of God. तो वह परमेश्वर का न्याय। So two different things. दो अलग अलग चीज। Yeah, this is not wrath of God. तो यह परमेश्वर का जो न्याय है या जो क्रोध है वो नहीं है। वचन 16 में जो बताया गया है वह जो अकाल या पीड़ा है वह परमेश्वर का क्रोध है। Those are just things that are happening on the earth. वो सारी चीजें हैं जो पृथ्वी पर हो रही हैं। Yeah, so will we recognize each other in heaven? Answer is yes.
तो क्या हम एक दूसरे को स्वर्ग में पहचान पाएंगे? तो उत्तर है हाँ। Because, for example, उदाहरण के रूप में in Matthew 17, when Jesus was transfigured, मत्ती 17 में जब यीशु को ये जब उन पर ये वो दुख दुख दिया गया था, so transfiguration is a momentary stepping into his glorified state. और जो क्षणिक भाग रूप में एक महिमामयी शरीर में जाने का वह प्रकार होता है। And along with him was Elijah and Moses. और फिर वह एलिजा और मूसा के साथ था। Peter, James, and John were on the mountain. और पतरस, जॉन और जेम्स वह थे उस पर्वत पर। They had never seen Moses, they had never seen Elijah. उन्होंने कभी भी एलिया को और मूसा को नहीं देखा था, But they saw लेकिन उन्होंने देखा and they recognized, hey, that's Elijah, that's Moses. और उन्होंने पहचाना कि यह एलिया है, मूसा है। Yeah. So there's a knowledge that is given that where we can recognize people. तो फिर एक ज्ञान दी जाएगी जहां पर हम लोगों को पहचान पाएंगे। From Adam, you'll see everybody. I don't know who all will be there, but तो क्या हम लोग मूसा को और भी पहचान पाए? तो उत्तर है कि नहीं, आप आदम से सबको देख पाएंगे, सबको पहचान पाएंगे। मेरा प्रश्न था कि अभी जैसे इजराइल में फिलिस्तीन में अभी जो लड़ाई चल रहा है, क्या वो भी अंतिम दिन का चिन्ह है? Will that fight be till the end? Sorry? Will that fight between Philistine and Israel will continue till the end? This current battle we don't know. देखिए, जो अभी का युद्ध है इसके बारे में हमको नहीं मालूम। It's from 1948. कि 1948 सन From से, the time Israel became a nation, जिस समय से जब इजराइल राष्ट्र बना, there have been many battles. तो बहुत सारे लड़ाइयाँ होंगी। Some have lasted few days, some have been longer. कुछ लड़ाइयाँ कुछ दिन के लिए हुई, कुछ लंबी समय के लिए हुई। So it's been going on. तो ये चलता रह रहा है। So this particular battle, we don't know when it will stop. और यह जो लड़ाई है हम नहीं जानते कि कब ये रुकेगी। They're trying to bring it to a pause. तो वह कोशिश कर रहे हैं कि उसको वो रोक दें। So maybe they will, they'll have some peace thing and they'll be calm for some time, then suddenly again start fighting. तो हो सकता है कि कुछ शांति वार्ता होगी, कुछ दिन के लिए वो शांत रहेंगे, लेकिन फिर वे लड़ाई करना शुरू कर So देंगे। that's been going on since 1948. तो 1948 से ये बातें हो रही हैं अभी तक। आई हैव अ क्वेश्चन। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि वचन में लिखा है कि अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जी। तो, और ऐसा भी लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो किसी झूठे भविष्यवक्ता ने किसी के लिए भविष्यवाणी की और जिसके लिए की उसने मान लिया कि हाँ ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है, उसने विश्वास कर लिया, तो क्या वो भविष्यवाणी पूरी होगी? So it is written in the word that in the end days false prophet will also rise. So if that false prophet prophesy against a believer, for a believer, and he accept that prophecy, so will that be fulfilled? So, yes, the answer is yes. तो उत्तर है हाँ। So a false prophet does not mean that they will prophesy and it won't come to pass. देखिए, जो नकली भविष्यवक्ता है इसका यह मतलब नहीं है कि वह भविष्यवाणी करेंगे और वह पूरी ना होंगी। The test of a false prophet is whether he leads us to God or away from God. जो परीक्षा है नकली भविष्यवक्ता की कि क्या हमें वह परमेश्वर के साथ ले जाता है, वो जो सच्चाई में ले जाता है या नहीं ले जाता है। Yeah, so if you go with me to the book of Deuteronomy, अगर आप मुझे साथ व्यवस्था विवरण की किताब में जाएंगे पुराने नियम में, and Deuteronomy chapter 13, और व्यवस्था विवरण अध्याय 13, and if you look at verses 1 to 4, और अगर आप देखेंगे वचन 1 से 4 तक, Deuteronomy 13, व्यवस्था विवरण 13 1 to 4. 1 से 4, Somebody can read it. क्या कोई पढ़ेंगे?
नहीं। So notice what it says. अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, The false word, he gives you a sign. जो भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता, And वह that's- आपको एक चिन्ह देगा And the sign comes to pass. और वह चिन्ह पूरा भी होता है, But लेकिन he's telling you to go in the wrong direction, तो वो आपको गलत दिशा में लेके जा रहा है, to worship the wrong gods. कि वह आपको झूठे देवताओं के को उपासना करने के लिए कह रहा है। So who is a false prophet? तो कौन है जो झूठा देवता, कौन है? It doesn't mean that this sign will not come to pass. It will come to pass. जो उन्होंने कहा इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होगा, वो होगा, वो पूरा होगा। The test is, whom is he leading us to? तो जांच यह करने की बात है कि वह हमारी अगुवाई किसकी ओर कर रहा है, That's the test. वही जांच है। Answer? समझ गया? The scripture says the word will be doing, but the word is not doing. What does it mean? Is the millennial period we having the same? तो प्रश्न है कि संसार जाती रहेगी लेकिन उसका वचन कभी नहीं जाएगा, तो क्या इस सहस्त्राब्दी में भी हमें यह बाइबल हमारे पास रहेगी? During the millennium, देखिए, जो 1000 साल का जो शासन है उसके समय, now this is only a conclusion I'm coming to. I can't give you chapter and verse. मैं आपको यह अध्याय नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं उस निष्कर्ष के ऊपर आ रहा हूं। There will be the millennial temple. वहां पर एक 1000 साल का एक मंदिर होगा, Ezekiel chapters 44 to 48. और यजकेल 44 के 48 तक, So there will be the worship of God in the temple. और उस मंदिर में परमेश्वर की आराधना होगी, And also we will have to teach the nations to worship Jesus. और हम लोगों को भी देशों को सिखाना होगा कि हम परमेश्वर की आराधना करें। So therefore I think the Bible will continue on. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बाइबल है वह लगातार आती रहेगी। Yeah, so the word of God as we know it will continue on through the millennium. तो हम यह से कह सकते हैं कि जो सहस्त्राब्दी है उसके साथ साथ भी हमारा जो परमेश्वर का वचन है हमारे साथ रहेगा। Just based on these references. तो यह उन सारे वचन के आधार के रूप में हम इसे कह सकते हैं। But then over here, लेकिन यहाँ पर heaven and earth, all these things will go. पृथ्वी और स्वर्ग सब चीज चले जाएंगे। So I don't know what will happen after here. After this, will we still have the Bible or not? तो मैं नहीं जानता कि इसके बाद क्या होगा, क्या हमारे पास बाइबल रहेगी या नहीं, मुझे नहीं। But we will have the eternal word. God is the eternal words. लेकिन हमारे पास जो अनंत काल का वचन है वो रहेगा, जो परमेश्वर हमारा अनंत काल का वचन है, He is the eternal words. और वह हमारा जो अनंत काल का वचन है। Right? So I think that's how it will be in the new heavens and the new तो earth. यह होगा उस प्रकार उस नए स्वर्ग में। सो प्रश्न है कि पति अविश्वासी है लेकिन पत्नी विश्वासी है, अगर कलीसिया का उठाना जाना मान लीजिए कल होगा, तो क्या पत्नी को भी उठाया जाएगा साथ में, पति को भी उठाया जाएगा साथ में? No free ticket. कोई मुफ्त टिकट नहीं है, Ticket has to be bought and paid for by Jesus. और टिकट को खरीदा जाकर और उसको यीशु के द्वारा खरीदा जाना जरूरी है। So she's referring to the word that with one person's belief, the whole family is coming through faith. So that is based on the individual person's. It's a promise for the house that, but each one has to make their own decision. देखिए, यह वचन या प्रतिज्ञा है पूरे घर के लिए, लेकिन उस घर में प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना निर्णय उनको खुद करना है। So each one has to have their own faith in the Lord Jesus. तो जो प्रत्येक है उनका अपना चुनाव निर्णय खुद करना है। आज के समय में हम चर्च को क्या प्रचार करें, क्या हम जैसे तैयार करें?
प्रचार कर सकते, यीशु हमें मिलेगा तरह तरह की। इस बात पे ज्यादा जोर दें कि जैसे बिल्ली ग्राम है और ये सब कुछ के प्रचार करके सब नरक में गिरा दें। हम किस बात पे जोर दें? So during these days, church, what we more emphasize on to preach, like Billy Graham was preaching about cross and was taking two people to heaven and hell. So what do we preach in nowadays generation? And So we should continue preaching the whole counsel of God. तो हम लोग को लगातार परमेश्वर का जो पूरा परामर्श है वह हमको प्रचार करना जरूरी The है, whole thing. पूरा चीज। Because our goal is to mature people to be like Jesus. तो हमारा जो लक्ष्य है कि यीशु मसीह के जैसे लोगों को हम परिपक्व बनाएं And also to equip them to do the work of the ministry. और उनको सशक्तिकरण करने के लिए वे सेवकाई का काम करें। Yeah. So we teach the whole counsel of God, जो परमेश्वर का पूरा जो वचन है, परामर्श है, वो उनको सिखाएं, including things about the end times. और यह जो अंत समय के विषय में उसके बारे में भी उसको शामिल करते हुए। We need everything. तो हम सबको सब चीज की जरूरत है। पहला कुरिन्थियों 13:8 से भाई कहते हैं कि पहला कुरिन्थियों 13:8 ना, हाँ जी। So prophecies will come to an end. That's what it means. तो उनका प्रश्न है कि जो भविष्यवाणियां तो होंगी लेकिन वो समाप्त हो जाएंगी। So we have to read a few more verses. तो हम और ज्यादा कुछ वचन पढ़ेंगे। It says, when that which is perfect is come, then that which is in part will be done away with. और जो जब वह स्वर्ग में जो महामय आएगा तो जो भाग में बताया गया है उसको भी ले लिया जाएगा। Right? So when that which is perfect is come, that is Christ himself. जब स्वयं मसीह जब आएंगे, Yeah. So जब वो सर्व सिद्ध आएगा तो जो भाग में बताएगा उसको भी ले लिया जाएगा। right. So I don't know, maybe, it could be in the millennium. We don't need to prophesy. I'm not sure. हो But सकता it है says when that which is perfect is come, that is when Christ himself is here, then we don't need those gifts. तो जब वह सर्व सिद्ध आएगा तो हमको वह वरदानों की जरूरत नहीं है, कह सकते हैं जी। माइक जरा दीजिएगा। सर मेरा प्रश्न है कि जैसे अभी बताया गया कि जो पतरस था यीशु के साथ था तो मूसा और एलिया दिखाई दिए उसको, तो पतरस ने कहा कि हे प्रभु, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए तंबू बनाऊंगा। तो उसके पास समझ थी, लेकिन पुराने नियम में जब सतरक वेशक और अबेदनगो के आग में डाला गया तो वहां नबूकदनेस्सर राजा जो था वहां का, तो उसको कैसे पता चला कि मनुष्य के पुत्र के समान हमने 3 को डाला था लेकिन उसमें 4 है, कोई एक मनुष्य के पुत्र के समान, उसको कहां समझ आई? So he saw somebody who shouldn't be there. वह किसी को देखा जो वहां पे नहीं होना चाहिए था। Right? He only threw Shadrach, Meshach, Abednego. उसने सिर्फ सदरक मेसाक और अबेदनगो को फेंका, But he's seeing a fourth person. तो वहां पर वह चौथे व्यक्ति को देख रहा है। And the fourth person looks different from Shadrach, Meshach, and Abednego. और ये चौथा व्यक्ति है वह अलग दिख रहा है सदरक मेशक और अबेदनगो से। Yeah. And the phrase, one like the Son of Man, that phrase in the book of Daniel, you also see it in Daniel chapter 7. That phrase is used to refer to God or to the eternal one. तो यहाँ जो युक्ति कही गई है मनुष्य का पुत्र, उसको हम देखते हैं दानियल के अध्याय 4 में, जो दिखाता है जो अनंत काल का परमेश्वर है उसके बारे में। So he used that phrase तो उसने उस युक्ति को, उस वक्त को, वचन को इस्तेमाल किया to refer to this being that he's seeing in the fire. और उस व्यक्ति को जिसको वह दिखा रहा है, जिसको उसने आग में देखा। It doesn't mean that he recognized, oh, this is Jesus. उसने इसका मतलब यह नहीं कि वह पहचान गया कि यह यीशु है, But he's using that phrase. तो वह उस वचन को इस्तेमाल कर रहा है, That this युक्ति को is इस्तेमाल कर रहा है। somebody, a divine being. हाँ जी, वो उसके जैसा दिख रहा है, वैसा वो कहा है,
वह पहचाना नहीं। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि अंत के समय में जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, विपत्ति आएगी, तो चुने हुए लोगों का क्या चिन्ह होगा? So during the end of the time, we see there will be fights, there will be battles. End of yeah. So those who are chosen, what is their sign? What will be their sign? The time sign is that there will be earthquake, there will be fights, there will be turmoils everywhere. So what will be the sign of the chosen people? चुने हुए लोगों का क्या चिन्ह होगा? Yeah, so we will be part of the glorious church. तो हम लोग एक तेजस्वी कलीसिया के भाग बन जाएंगे So उससे। we will be continue to be changed to become more and more like Jesus. तो हम लगातार ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह के जैसे दिखने लगेंगे, बनने जाएंगे। Ephesians 4:13. We'll all come to the unity of the faith, of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the full measure of the stature of the fullness of Christ. और इफिसियों का 4:13 हम उसको तुरंत पढ़ लेंगे कि इस प्रकार लिखा है कि जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक शुद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की ढंग, श्रद्धा, विद्या और चतुराई में उनके भर्म की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके में उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। आप समझ गए ना? तो हम लोग वैसे हो जाएंगे। तो प्रश्न है कि यीशु जो अभी भी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो जो उठाए जाएंगे कलीसिया के साथ, वे भी क्या प्रार्थना करेंगे उस उठाए जाने के समय यहाँ पर जो लोग रहेंगे उनके लिए? So there are two things that come to mind. One is in Revelation chapter 5. तो दो बातें मन में आती है, एक है प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 and the other one in Revelation chapter 8. और दूसरा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 8। In Revelation chapter 5, it talks about the saints that they have the harp and the bowl. तो वहां पर प्रकाशित वाक्य 5 में वो कहा गया है कि संतों के बारे में जिनके पास वीणा है और एक के पास कटोरा है। So the harp represents worship. You're singing unto the Lord. तो जो वीणा है वह आराधना है, परमेश्वर के लिए गीत गाने की बात है। The bowl represents incense. That's prayer, the prayers of the saints. और जो परमेश्वर जो इंसेंस है, कटोरा है, वह धूप है जो परमेश्वर के लिए निकाला जाता है। And same thing in Revelation chapter 8, you see that that the prayers of the saints are coming up before the throne of God. और 8वें प्रकाशित वाक्य में के 8वें भाग में अध्याय में देखते हैं कि वही जो परमेश्वर के जो संतों की आराधना है वो परमेश्वर के सिंहासन के पास आती है। And the angel takes that incense and throws it to the earth, indicating that people on the earth are also going to be praying. तो वह स्वर्गदूत देता है और उस सुगंध को, उस धूप को लेकर वह पृथ्वी पर फेंकता है ताकि लोग प्रार्थना में आगे बढ़े। So to answer your question, will we be praying in heaven? तो आपका प्रश्न उत्तर देने के लिए कि क्या हम स्वर्ग में प्रार्थना करते रहेंगे? I'm just looking at these two and saying maybe. I don't know for sure. तो इन दोनों चीजों को मैं देख सकता हूँ और कह सकते हो सकता है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। Yeah, but just looking at Revelation 5, Revelation 8, yeah, it says there's prayers, there's incense, so maybe. तो प्रकाशित वाक्य 5 या 8 में हम देखते हैं कि प्रार्थना और ये धूप का होना, तो इसको हम कह सकते हैं कि हो सकता है प्रार्थना करें। ठीक है। सर मेरा ये प्रश्न है कि जब रैप्चर किए जाएंगे हम लोग सब लोग, उसके बाद जब यीशु मसीह के साथ हम रिटर्न आएंगे वापस, उस समय जो अंतिम समय के जो 7 वर्ष के बाद जो लोग रहेंगे वो उद्धार पाए हुए रहेंगे, वो नई सृष्टि में यीशु मसीह के साथ प्रवेश करेंगे। हम लोग जब उनके साथ आएंगे तो हमारे जो रिश्तेदार या कोई हमारे साथ यहाँ पृथ्वी पर अंतिम समय में तक टिका रहेगा, तो उसको हम पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे?
So during this 7 days tribulation, when we are lifted up and we come back again, and at that time, if our relatives are there at that point in time, we'll be able to recognize them. Yeah, we can't point to any chapter and verse to answer that question. तो आपको किसी पाठ या किसी वचन पे मैं निर्देशित नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ पे लिखा है, But my thought is, yes, you'll be able to recognize people. तो मेरा जो विचार है, हाँ, हम लोगों को पहचान पाएंगे. So, if there are family members who have come through here, you'll be able to recognize them. तो हम अपने परिवार के लोगों को पहचान पाएंगे. All right, let's rise to our feet, please. आइए हम सब अपने पैरों पे खड़े होंगे And we close in prayer. और हम प्रार्थना में समाप्त करेंगे. Thank you for your patient listening. और आपके बहुत धैर्यवान सुनने के लिए आपको बहुत धन्यवाद. And okay, let's close in prayer. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे. Father, we thank you for this time of learning. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने सीखने के लिए दिया. We just pray that the Holy Spirit will continue to clarify things to us. हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा लगातार हम इन सब बातों में हमें स्पष्टीकरण देती रहेगी. Help us to understand these things हमें इन सब बातों को समझने के लिए मदद कीजिए and help us to share and bless others with it. और हमें मदद कीजिए कि हम दूसरों के साथ इस वचन को बांटें और उनको आशीषित करें. We thank you, Lord. हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. आमीन.